ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں ماہ رمضان میں پانی کی فراہمی بہتر بنائیں گے. فری ٹینکر کی تعداد بھی ڈبل کر دی, سیل بھی قائم کر دیا, ایک فون کال پر پانی بھی فراہم کریں گے, جبکہ ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین کے مسائل بھی حل ہوں گے. ایم ڈی واٹر بورڈ خالد محمود شیخ کی K21 نیوز سے بات چیت ہوئی, آپ کو بھی سنواتے ہیں. آداب ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پانی بیچ رہا ہے. میرا موضوع یہ ہے کیوں بیچ رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے. لیکن میں نے دیکھا تھا ان کا ہینڈ آؤٹ آتا رہتا ہے واٹر بورڈ کا کہ صاحب جو پانی میں جو کرپشن تھی, جو اس کی فروخت میں تھی, اس کو جو ہمارے ایم ڈی آئے تھے خالد محمود شیخ صاحب, انہوں نے پھر اس میں بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں کہ کرپشن کا گراف نیچے آئے گا. یہ خبر میرے لیے اچھی تھی, لیکن انہوں نے اس کے لیے ایک سیل ویل بھی بنایا ہوا ہے, کیا کیا ہوا ہے, بہت ساری چیزیں, سوالات اتنے سارے ہو گئے ان کو آئے ہوئے, لیکن ملاقات نہیں ہو رہی تھی. آج ملاقات ہو گئی. میرے ساتھ کھڑے ایم ڈی واٹر بورڈ خالد محمود شیخ صاحب, سینئر افسر ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی, یہ وہ کراچی کے اندر, خیر ان کو کون نہیں جانتا. خالد بھائی یہ مجھے بتائیے گا یار, آپ پانی کیوں بیچ رہے ہو یار؟ یہ پرچی آئی تھی کہ شاید لوگ کہتے ہیں 4,000 5,000 8,000 کا ہم ٹینکر خریدتے ہیں, آپ ابھی بھی بیچ رہے ہو؟ اچھا, پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے پانی بیچنے کا کوئی بزنس نہیں شروع کیا ہے. بزنس تو اس طرح ہے کہ ہمیں پانی جو ہے وہ جو واٹر بورڈ کی لائنیں ہیں ان کے تھرو پہنچانا ہے, اور وہ ہم پہنچا رہے ہیں, اور اس کے جو گورنمنٹ کے پرسکرائب ریٹس ہیں اس حساب سے ان کو بلنگ ہوتی ہے. اچھا, جب ہم نے یہ 6 ہائیڈنٹس جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز پر قائم ہوئے, ان کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ تھا, اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ آپ نے 50% جو پانی ہے وہ سرکاری نرخ پہ بیچنا ہے, اور 50% سے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے کمرشل ریٹ پہ بیچنا ہے. تو جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ بڑی عجیب سی صورتحال تھی. ایک طرف تو لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے تھے کہ انہیں پانی نہیں مل رہا, دوسری طرف ہمارا جو کوٹا تھا 50% سرکاری ریٹ کا وہ کم جا رہا تھا. تو یہ مس میچ تھا, اور یہ مس میچ ہوتا ہے انفارمیشن کی پراپر ترسیل نہ ہو تو اس کا میں نے حل یہ نکالا کہ کمپلین سینٹر جو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کام کر رہا ہے, اس میں جی پی ایس کے لیے لوگ فون کر کے اپنے گھر پہ ٹینکر منگا سکتے ہیں, جس کے لیے انہیں لائنیں لگانی پڑتی تھیں, جن کے لیے انہیں کمرشل لوگوں کو فون کرنا پڑتا تھا. پھر یہ شکایت آتی تھی کہ 4,000 کا ٹینکر ہے, 6,000 کا ٹینکر ہے, 7,000 کا ٹینکر ہے. تو اس زیادہ نرخ کو روکنے کے لیے ہم نے ایک سسٹم یہ بنایا ہے کہ گھر بیٹھے لوگ اپنی کمپلین یہاں رجسٹر کریں, اور سرکاری نرخ پہ جس میں 1,000 گیلن کی قیمت صرف 1,000 روپے, 2,000 کی 1,400 روپے, اور 3,000 کے 1,800 روپے, تو وہ آسان نرخ پہ یہ پانی حاصل کر سکیں. تو یہ ہم نے سسٹم بنایا. اچھا, جب ہم نے یہ سسٹم بنایا تو لوگوں کی پذیرائی اتنی تھی. اب دیکھیں نا, 2 کروڑ کا شہر ہے, اور 2 کروڑ کے شہر میں مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. تو اب اس کنٹرول روم بنانے کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ گھر بیٹھے سرکاری نرخ پہ ٹینکر لے سکتے ہیں. اچھا, یہ تو زبردست, اس سے تو کرپشن بھی ختم ہوئی نا. اچھا, پہلے یہ جو لوگ فجر سے پہلے جا کے ہائیڈرنٹ پہ کھڑے ہوتے تھے, عورتیں بھی کھڑی ہوتی تھی, یہ اس سے بھی جان چھوٹ گئی ہماری. 100% اسے جان چھڑانے کی وجہ سے یہ سینٹر بنایا گیا ہے, کیونکہ لوگوں کو تنگ نہ ہونا پڑے, لوگ فون کر کے یہ کر لیں. اب یہ صرف یہاں تک بات نہیں رکے گی. پہلے ہم نے 3 لائنیں بنائیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ رش بے تحاشا ہے. آج سے 6 لائنیں آپریٹ ہو جائیں گی. اگر آپ دیکھ سکیں تو ٹیلی فون کنیکشن ابھی بھی لگ رہے ہیں, تو آج 6 لائنیں ہو جائیں گی, جس سے ہم ڈبل کر دیں گے ان کا کوٹا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کی تعداد جن کو سستے داموں پانی ملنا چاہیے وہ ملنا ممکن ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور کام بھی ہم نے کیا ہے جو میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتاتا چلوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جو فری کوٹا ہے وہ علاقے جہاں پر پانی کی ڈسٹریبیوشن لائن نہیں ہے وہاں لوگ پریشان تھے, خاص طور پہ ویسٹ کا علاقہ ہے, لیاری کا علاقہ ہے. تو اس کے لیے ہم نے ڈپٹی کمشنرز کے کوٹے میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے. مثال کے طور پہ ساؤتھ میں 40,000 گیلن جاتا تھا, ہم نے اس کو 2 لاکھ گیلن کر دیا ہے. اس طرح جو ویسٹ میں جاتا تھا 1,10,000, ہم نے اس کو 3 لاکھ کر دیا ہے, اور ہم رمضان سے پہلے اس کو 5 لاکھ تک لے جانا چاہتے ہیں, تاکہ لوگوں کو, اور اچھا وہ فری پانی ہے, اس میں کوئی 1 روپیہ بھی کوئی کلیم نہیں کر سکتا, لیکن وہ ڈی سی دے لیکن وہ ڈی سی دے گا. اس میں ذمہ دار وہ ہے, اس کی ریکمنڈیشنز میں ہم دے رہے ہیں تاکہ بیچ میں کوئی پلفریج, کوئی اس طرح کی کمرشل سسٹم شروع نہ ہو جائے. اچھا, آپ سے میری ایک دشمنی ہے یار, میں آپ کو کھینچوں گا, کیونکہ میرا یہ پانی وانی آپ بیچے جاؤ یا نہیں بیچو, کرپشن ختم کرو, وہ الگ چیز ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ملازمین جو ہیں, آپ کی 10 یونین ہے, ان کا بھی ایجنڈا ہے, یہ سب بھائی بھائی ہیں, اور کہ یہ میرے ڈی سی کوٹے, ایڈ ہاک ملازمین, یہ پچھلے پینشنر ہے, ان کے بیچاروں کا بڑا رونا پیٹنا ہوتا ہے. اور پینشنر پہ تو خیر آپ نے میرا بلدیہ عظمیٰ کراچی میں بڑا ساتھ دیا, نو ڈاؤٹ, اور یہاں پہ بھی آپ دو گے ورنہ پکڑ لوں گا. یہ جو چیئرمین صاحب کے پاس فائل پڑی ہے یار, آپ کی تو لائن اچھی ہے, سائن کروا لو یار. نہیں بالکل, یہ میری یونین والوں سے بات ہوئی ہے, اور میں آج ہی کل میں جاؤں گا منسٹر صاحب کے پاس,
जो चेयरमैन भी हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों के जो दरीना मसाइल हैं उनको हल कर दें। अच्छा देखिए, आपको मेरी आदत का पता है कि मैं जिस इदारे में भी जाता हूँ सबसे पहले मैं पेंशन, ग्रेजुएटी और जो मुलाजमिन के वाजिबात हैं उस पर काम करता हूँ। तो मेरे आने के बाद हमने इसको काफ़ी हद तक पेमेंट कर दी है। मेरी ख्वाहिश ये है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर कोई एक भी पेंशनर ऐसा ना बचे जिसके कोई पेंशनर्स ड्यूज हैं। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। अरे जबरदस्त भाई, ये तो जबरदस्त काम कर दिया। लेकिन सर एक चीज और मुझे बताएं, ये एक मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट ने आपको दिया था रफीक शेख की सूरत में, वो यार आदमी बड़ा खतरनाक है, सुना लॉकअप वॉकअप बना रहा है यार, वो जेल वेल भी बना रहा है। तो अगर ये कार्रवाई हो गई तो जो 32 अरब रुपए उनसे आपने बड़े वालों से लेने हैं और 23 अरब रिटेलर से लेने हैं, तो आप तो पैर पे खड़े हो जाओगे अगर इस तरह सूरत हुई तो। आपको इल्म है ना कि मैंने ये काम बल्दिया अज़मा कराची में भी किया था जब मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र था, और मैंने आने के बाद खुद मैं गया चीफ सेक्रेटरी साहब से, की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर किया और एक रिकवरी मजिस्ट्रेट हमारे पास पोस्ट हो गया। अब उसका काम ये है कि वो लोग जो पानी के बिल नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले, और अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो हम उन्हें सज़ाएँ भी देंगे उस मजिस्ट्रेट के थ्रू, और वो लॉकअप भी है और उसमें कई महीने की सज़ा भी है और जुर्माने भी हैं। देखें, कोई भी इदारा उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब उसका रेवेन्यू सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये अच्छा इकदाम है और इससे सिर्फ वो लोग डरें जो कि पानी के पैसे नहीं देते। अच्छा ये एक चीज और बताइएगा, ये आप जब से आए हैं आपका हैंड आउट आता है वाटर बोर्ड का और पिक्चर आती है, हैंड आउट अगर होता है वो जाली होता है, जब तस्वीर अगर आ जाए तो वो जेन्युइन हो जाता है। क्या आप गैर कानूनी हाइड्रेंट्स ये वो पुलिस रेंजर से आपको मदद कर रही है, उसका भी खात्मा कर रहे होते तो उससे तो पानी का कुछ क्राइसिस कम होगा? देखें, मैं आपसे बड़ी दिलचस्प बात करता हूँ, वो ये कि जो हाइड्रेंट अगर आपके पानी के रिसोर्स पर लगा हो और उसको आपने ख़त्म किया हो तो उससे पानी की इंटेक बढ़ेगी। लेकिन हमने ना सिर्फ वो एलिमेंट्स को ख़त्म किया, लेकिन हमने सब सॉइल के नाम पर जो लोग बिजनेस कर रहे थे उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया। अच्छा, उससे इसका फ़ायदा तो ये हुआ कि रेट हमारी बहाल हुई। उसके बाद एक पॉलिसी बनी, वाटर कमीशन ने उस पॉलिसी को अप्रूव भी किया, ऑपरेटिव भी किया, वो पॉलिसी गवर्नमेंट को भी चली गई और हमने उस पॉलिसी को नोटिफाई भी कर दिया है, और अब लोग लाइनें लगाकर उसकी परमिशन भी ले रहे हैं। तो उससे हमें कुछ नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि 10 करोड़ रुपए तो अभी फ़ौरन मिल जाएंगे और 1.5-2 करोड़ रुपए महीना की हमारी आमदनी हो जाएगी, जिससे मेरे पेंशन का मसला तो हल हो जाएगा हर महीने का, सिर्फ इस एक इकदाम से। और मेरा ख्याल ये है कि जब एक चीज़ कानून के फोल्ड में आ जाती है तो वो रेगुलेट भी अच्छी तरह होती है और उससे लोगों को भला होता है, लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। अच्छा मेरे चेयरमैन जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, मेयर कराची की बात नहीं कर रहा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उनका काम है, वो कहते हैं जी सेवरेज की लाइनें हम डाल रहे हैं, पानी की हम डाल रहे हैं, वाटर बोर्ड ताउन नहीं करता। तो कुछ यार कुछ ऐसा इंतजाम करो, उनके आंसू पूछ जाए यार, वो लोग पैसे दफन कर रहे हैं मट्टी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने आने के बाद अपनी रिकवरी बेहतर की और लोगों को मैंने अपने एसीज को कहा कि अब आप तेज़ी से काम करें क्योंकि पैसे हमने जमा कर लिए हैं तरक्याती कामों के लिए। मैं ज़ाती तौर पे इस आइडिया के ख़िलाफ़ हूँ कि कोई भी मुकामी नुमाइंदा जो है वो वाटर बोर्ड को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई स्कीम शुरू कर दे और रोड तोड़ दे। रोड उनका अपना है, उनको ख्याल करना चाहिए। लाइनें हमारी हैं, पानी सप्लाई की लाइन मैं किसी की भी इस तरह ज्वाइन नहीं होने दूंगा। उसकी वजह ये है कि वरना फिर लाकानूनियत बढ़ेगी। तो ये मीटिंग हमारी कई दफ़ा हो चुकी है एसएसपी के साथ और दूसरे लोगों के साथ, और हमने ये फैसला किया है कि हम तमाम एजेंसीज जो हैं, चाहे वो केएमसी हो या वाटर बोर्ड हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो मिलकर काम करेंगी ताकि ये इशू खत्म हो जाए। तो उससे हम काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अब हम खुद भी डीएमसी को पॉइंट आउट करते हैं जहाँ कोई इलीगल कनेक्शन की बात होती है या रोड कटिंग की बात होती है, ताकि वो एफआईआर काटें, वरना हम एफआईआर करते हैं जो हमारी लाइनों के साथ ज़बरदस्ती लाइनें जोड़ने की कोशिश करता है। जबरदस्त, ये तो अच्छी खबर दी आपने। लेकिन अब आखिर में एक सवाल करूंगा क्योंकि आप फंसे हुए, मुझे पता है, मैंने जबरदस्ती आपको रोका हुआ है, आपको एक मीटिंग में जाना है। ये आप वाटर बोर्ड सेवरेज बोर्ड चला रहे हो, पानी की फराहमी आपको करनी है, सेवरेज का मसला निकासी आपका अपने हल करना है। लेकिन मैं जो हूँ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और धड़ अब 16 बिल्डिंग 22 मंजिला 23 मंजिला दिए जा रहा हूँ, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी सीख रही है। इदारों में कोई कोऑर्डिनेशन हुआ अमीर मुस्लिम हानी के बाद, काबिल एहतराम जज के बाद, कि अब वो मसला रुकेगा? देखें, ये बहुत बड़ा मसला था जो कि अब हल हो गया। हल इस तरह हो गया कि वाटर एसबीसीए ने वो तमाम एनओसीज कैंसिल करने का फैसला किया है जिनमें वाटर बोर्ड की या दूसरी यूटिलिटीज एजेंसीज की एनओसी शामिल नहीं है, और उनको नोटिस भी जारी हो गए हैं। तो एसबीसीए भी बेहतर काम कर रहा है और उसने एक्शन ले लिया है उन प्लाजाज के खिलाफ या उन कमर्शियल बिल्डिंग के खिलाफ जहाँ पर वाटर बोर्ड की एनओसी नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब तमाम डिपार्टमेंट जो है मुख्तलिफ तरीके से एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, जिससे शहर के मसाइल को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जबरदस्त, आज भी आप खतरनाक हो यार। बल्दिया उस्मा कराची में मैंने देखा था कि आप जो है ना अपने अच्छा ये मैं बिल्कुल मुंह पे इनके कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए था, पीछे कहना चाहिए था कि आप इदारे के मफाद को और उसके मुलाजमीन को प्रेफर करते हो पहले, कि हमारी कोई चीज़
एसेट्स जो है उसके ऊपर बड़ी गहरी तवज्जो होती है और उसको बचाने की कोशिश करते हो। इसमें भी वाटर बोर्ड में भी, केएमसी में तो मैंने देखा था आपने बड़ा काम किया था। देखें, अभी आप बैठे थे मेरे कमरे में, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने हमें एक पूरी कंसल्टिंग फर्म दी है जो हमारे जितने भी एसेट्स हैं उन सब का रिकॉर्ड जमा कर रही है। हमारे फार्म 7 जो है वो डेवलप होंगे और ये सारी ज़मीन जो है केडीए के वाटर बोर्ड के नाम पर ट्रांसफ़र होगी और इससे जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत मदद मिलेगी। ये थे खालिद महमूद शेख साहब, एमडी वाटर बोर्ड। ये बहुत बुरा फंसे हुए हैं, इनको एक मीटिंग में जाना था, मैंने इनको जबरदस्ती रोका हुआ है। खालिद साहब आप तो निकले, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बहुत अहम काम करना है। आदमी मैं इनको बार बार कह रहा हूँ, खतरनाक नहीं है, मोहब्बत करने वाले हैं। और बल्दि उस्मा कराची में फाइनेंशियल एडवाइजर थे, तो वहां पे भी इन्होंने अपने असेट्स को बचाया था और अपने मुलाजमिन। इन्होंने एक अच्छी बात कही है, पेशेंटर मेरा हार्ड इशू होता है और एडहॉक माजूर और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले थे मुस्तकिल उन्हें वज़ीर आला खुद करने जा रहे हैं, लेकिन एडहॉक वाले और ये जो थे सन कोटा, डिसीज कोटा और माजूर, ये मेरा एजेंडा है, इसको मैं करवा के छोड़ूंगा। लेकिन मैं जो आया था, इस सेल में आया था, ये वो सेल है जहां पे अब आपको नहीं आना पड़ेगा, लाइनों में हाइड्रेंट पे नहीं लगना पड़ेगा। और ये अभी भी देखें, जरा दूर रहना भाई, ये लोग कंप्लेन सुन रहे हैं कि ये जो कंप्लेन आ रही है यहाँ पे कि हमें हाइड्रेंट वो पानी चाहिए, ये चाहिए, तो एक वो मिनिमम है कि उन्होंने बता दिया अपने मुंह से कि 1000 रुपए का फला टैंकर है, 1400 का, ये ज्यादा से बड़ा टैंकर 1800 का है। तो वो जो 4-5 हजार वाली कहानी थी, 8,000 वाली की जो लूट मार की सेल लगी थी, उसका खात्मा हो चुका है। और अभी तो 3-4 लाइनें हैं, लेकिन अभी मुझे बताया गया कि वहां अफसरान बैठे थे कि 5 लाइनें और आ गई हैं हमारे पास, 5 लाइनें और आ गई हैं। उन 5 लाइनों के बाद ये जो इनका सेंटर बना हुआ है, ये और तेजी से फाल होगा और लोगों को सहूलतें मिलेंगी कि वो जाके सुबह खवातीन या मर्द हाइड्रेंट पे जाके लाइन में नहीं खड़े होंगे, वहाँ एजेंट भी खड़े होते हैं। वो सिलसिला भी खत्म हो जाएगा कि मैंने जाके पर्ची ले ली और किसी और को 1600 का, 1800 का, 2000 का भेज दिया, वो करप्शन भी खत्म होगी। तो ये चीज होगी। उसके बाद वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की इंतजामिया एक और काम कर रही है कि जब ये टैंकर दे देंगे तो अगले आगे 3 महीने के बाद ऑनलाइन हो जाएंगे। ऑनलाइन होने के बाद ये हाइड्रेंट से भी ऑनलाइन होंगे और यहाँ से अपने सारिफ से भी, और उसको एक बिल पे कर देंगे, ईमेल कर देंगे। बिल पे होने के बाद करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें 3 से 6 माह और लग जाएंगे। जब बिल आ जाएगा तो ना टैंकर वाला कुछ ले सकेगा, ना कोई एजेंट होगा। आप वो कहेगा जी मेरे पास तो ये 3000 का बिल आया, ये 1500-1400 का बिल आया, ये 1000 रुपए का बिल आया, मैं ये पे करूंगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक बड़ा हाथी जो मस्त था, अब एमडी खालिद महमूद शेख आने के बाद शायद कुछ राय रास्त पे आ जाए। करप्शन का ग्राफ नीचे आ रहा है। मेरे पास और भी बड़ी खबरें हैं, अगर मैं वो खोल दूंगा तो एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, लेकिन मैं अभी उसको रोकता हूँ आइंदा हफ्ते के लिए, क्योंकि एमडी से मेरी बात हुई है। अगर वो रिजल्ट दे देते हैं खालिद महमूद शेख साहब तो ठीक है, इसलिए कि उसमें कराची वालों का भी फायदा है, इनके अफसरान और मुलाजमीन का भी फायदा है। ये खबर दी है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से कि कराची वालों को कैसे रिलीफ मिल रहा है, और बाकी चीजें भी बता दी। मेरे पेशनर का भी बता दिया, डॉग उनका भी कुछ होने जा रहा है। चेयरमैन के पास ये जा रहे हैं, जाम खान शोरो के पास। तो जाम खान शोरो साहब, तुम्हारे दिन रह गए, गिने जा चुके तुम्हारे दिन, 20 दिन रह गए। लिहाजा मैं फिर कह रहा हूँ कि जाते जाते पिछले कामों पे मट्टी डालो और ये साइन कर दो, ताकि इनका भला होगा। ये दुआएं देंगे और दुआओं से ही आदमी बचता है, वरना फिर बहुत कुछ हो जाता है। आधा वर्ष गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 में गटर के